میں سب سے پہلے معزز مہمان جناب بلال اظہر کیانی صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس کو ایف پی سی سی میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سے آفیشل سے تو وہ ملتے بھی ہیں، ان سے اپڈیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں، ایک ہم سب کو ہی کیپس اس آن آر ٹوز، مگر ہر وقت وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ریگولرلی وہ معیشت اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھیوں سے اکانومی کے حوالے سے چیمبرز کے ساتھی اور ساتھ ساتھ دیگر اور سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹ سے اور بزنس مین سے، انڈسٹریلسٹ سے، اکانومسٹ سے، سب سے وہ ایک ریگولر رابطہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے دیکھا جی کچھ تو اسپیسیفک میٹنگز کافی دفعہ بجٹ سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کی چیمبر سے بھی ہوئیں، جس میں ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے اور دیگر چیمبرز کے پریزیڈنٹس موجود تھے، اور جو یہاں پر پریزیڈنٹس موجود ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں، کیونکہ میں ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں کہ وہ 1.5 گھنٹے تک بھی کبھی کبھی گئی ہیں، تو تفصیلاً گفتگو ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا جی، اور میں یہ ایک تو یقین دہانی کرانا چاہتا تھا۔ دوسری بات میرے خیال سے جی بڑا ایپٹ ہے، اور میں مشکور ہوں عاطف صاحب نے بات کے آغاز میں حکومت نے جو ایفرٹ کی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہمارے ملک نے حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کچھ مختصراً بیک گراؤنڈ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ پچھلے سال جب ہماری حکومت نے ہماری یہ حکومت وجود میں آئی، اس نے آفس سنبھالا، تو اس ٹائم پر مہنگائی کی شرح تقریباً 20 سے 25% تک تھی، اور 38% سے تک بھی اس سے پہلے پہنچی تھی۔ پالیسی ریٹ 22% پر تھا، اور اس ٹائم پر مجھے یاد ہے جی، میں اس سے پہلے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں جاؤں تو میں خود بھی بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن بھی ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہماری جماعت نے حکومت بنائی تو اس ٹائم پر یہ بات ہوتی تھی کہ معاشی حالات اتنے مشکل ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے سنبھالنے مشکل ہوں گے۔ یہ میں پچھلے سال فروری کی بات کر رہا ہوں۔ اس ٹائم پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو کانٹوں کا تاج ہے۔ معاشی طور پر خاص طور پر یہ بات کی جاتی تھی کہ جو بھی حکومت یہ سنبھالے گا وہ جون جولائی تک اس سے یہ معاملات اس سے بے قابو ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہونے والی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام طے کرنا تھا، مہنگائی عروج پر تھی، تو سب کا خیال تھا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اور میں ایک جماعت نے تو بالخصوص اس کے پاس موقع بھی تھا ایک اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنانے کا، مگر اس نے وہ اس لیے موقع ایکسرسائز نہیں کیا کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ تو جو بھی حکومت سنبھالے گا اس معاشی وزن کے تلے گر جائے گا۔ تو یہ حالات تھے، یہ چیلنج تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی، مگر الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلے ایک مالی سال میں مہنگائی کی شرح میں بھی ریکارڈ کمی آئی۔ اب آپ نے دیکھا جون کے مہینے میں 3.5% کی مہنگائی کی شرح آئی، جو مہنگائی کی شرح ایک پوائنٹ پر 38% پر تھی، وہ اب جون میں 3.5% پر آئی، اور مالی سال 2025 کی حکومت نے اس ٹائم پر جو ایکسپیکٹڈ انفلیشن رکھی تھی وہ 12% رکھی تھی، اس پہ بھی حکومت نے اوور اچیو کیا، اور الحمدللہ مہنگائی کی شرح اس پورے مالی سال میں 4.5% ایوریج ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% تک آ گیا، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ دیکھا کہ ہم نے پرائمری بیلنس کے بھی اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی طے کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہم پبلک ریلیف کے لیے کام کر سکتے تھے، اس کی میں صرف ایک مثال آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دوں گا کہ اس کا بجٹ 460 ارب روپے سے بڑھا کر 592 ارب روپے کیا گیا، جس کے نتیجے میں 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش مدد ملتی ہے۔ تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے، اپنے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پرائمری بیلنس کا ٹارگٹ بھی اچیو کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی آن ٹریک رہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی پوسٹ کیا، ریمیٹنسز میں بھی گروتھ دکھائی، فارن ایکسچینج ریزروز میں بھی گروتھ دکھائی، مہنگائی کی شرح بھی قابو کی، جو ریلیف عوام کو دے سکتے تھے وہ بھی دیا، اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ ہماری پرفارمنس اتنی اچھی رہی کہ جب بھارتی جارحیت کے نتیجے میں جنگ عروج پر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اس جنگ کے دوران بھی آئی ایم ایف کا جب بورڈ اپروول آیا، اور بھارت کی کوششوں کے باوجود ہم وہ آئی ایم ایف کے بورڈ اپروول ہمارا پاس ہو گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو
मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, जो अहदाफ हमने पूरे किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मईशत एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक अचीव कर चुकी है, और इसमें यकीनन आवाम का, बिजनेसेस का, पूरी इकॉनमी का एक किरदार है। सब ने मिल के उसके अंदर ये अपना एक हिस्सा डाला है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हुई है। मगर आज हम जहाँ पर खड़े हैं जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर बात करते हैं कि यहाँ से आगे हमने पहले भी देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में एक IMF के प्रोग्राम के नतीजे में आती है, मगर उसके बाद जब मईशत में ग्रोथ वापस आती है तो 4-5% से ज़्यादा ग्रोथ जब हम पोस्ट करने लगते हैं, तो फिर से क्योंकि एक्सपोर्ट्स उस तादाद से नहीं बढ़ती जो मुल्क की ज़रूरत होती है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्राइसिस में जाते हैं और फिर वापस IMF जाना पड़ता है। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा है, बार बार कहते हैं कि दिस विल बी द लास्ट IMF प्रोग्राम। ये उनका एक टारगेट है, और वो हम तभी अचीव करेंगे कि जब अब इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमने अचीव की है, इसके गेंस को हम कंसोलिडेट करें और आगे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं, कि जब आगे मईशत में ग्रोथ आए तो सिर्फ वो ग्रोथ ना हो, कंजम्पशन लेड ग्रोथ ना हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जिस ग्रोथ के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें और मुस्तहकम हों, और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ऐसी ग्रोथ जो पायदार हो, और ऐसी ग्रोथ जिससे हर पाकिस्तानी शहरी, ख़ास तौर पे कमज़ोर तबकात मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जी हमारा इस साल का एक विज़न है, और इस साल अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बिल्ड करते हुए इस साल के बजट के मेन कॉन्टूर्स भी इसी विज़न से ड्रिवन है। इसमें एक मेजर स्टेप जो है वो टैरिफ रिफॉर्म्स का है, कि हमने पहले साल 5 साल के नेशनल टैरिफ पॉलिसी अनाउंस की है, और उसका पहले साल के जो स्टेप्स हैं वो इस बजट में अनाउंस किए गए हैं, और उसमें बुनियादी फोकस ये है कि रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो हमारे सनतकार हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे कारोबार हैं, उनके लिए उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो, उनकी चीज़ें बनाने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स की इनपुट कॉस्ट कम हो, उनकी वो मशीनरी जो वो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसकी कॉस्ट कम हो, ताकि वो एक्सपोर्ट के हवाले से competitive हों, और हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स की ग्रोथ भी बढ़े, और जो ट्रेडिशनली नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं वो भी आगे एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बन सकें। इसी के साथ आपने देखा कि हमारी जहाँ पर जब इन्फ्लेशन रेट जहाँ पर हमने उस पर ओवर अचीव किया, कि हमारा ख्याल था कि लोअर डबल डिजिट में पहले साल में लेके आएंगे 12%, मगर हकीकतन हम उसको 4.5% तक ले आए। महंगाई पर हमने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस काबू किया। तो उसका एक कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू पर्सपेक्टिव ये होती है कि आपके जो FBR के टारगेट्स के अहदाफ होते हैं वो उससे मुतासर होते हैं, क्योंकि उसमें एक एस्पेक्ट रेवेन्यू टारगेट्स में एक इन्फ्लेशन की असम्पशन होती है। इन्फ्लेशन की असम्पशन 12% थी, मगर उसमें इन्फ्लेशन क्योंकि उससे कम थी तो उसका यकीनन एक असर है, मगर ये एक ऐसी कॉस्ट है जो मईशत में छोटी कॉस्ट है कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, और उससे जो आम आवाम को फ़ायदा हुआ है। मगर उसके बावजूद लो इन्फ्लेशन और मॉडेस्ट GDP ग्रोथ के बावजूद, जो कि हमारा पहला साल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का था, तो इसमें जो हमने 2 से 3% के दरमियान की ग्रोथ पोस्ट की और 4.5% की इन्फ्लेशन की, इसके बावजूद हमने FBR की रेवेन्यू ग्रोथ 26% देखी। तो सिर्फ ये इस बात का सबूत है कि इस साल कितनी ऑटोनमस ग्रोथ अचीव की गई। और इस साल ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पर, प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्राइव के मुताबिक FBR में जो रिफॉर्म्स आए हैं, जिसमें फेसलेस कस्टम्स एक मिसाल है, जिसमें दीगर और इनिशिएटिव्स हैं, उसके नतीजे में हमने इस साल दिखाया है कि टैक्स नेट डीपनिंग के हवाले से इम्पैक्ट, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट के हवाले से ऐसे नताइज दिखाए कि IMF ने पहली दफ़ा इस नए माली साल के बजट में तकरीबन 400 अरब रुपए तक के करीब इन्फोर्समेंट की मद में सिर्फ टारगेट माने, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, मगर यकीनन आगे अब हमने FBR की परफॉर्मेंस में भी आगे मज़ीद इजाफा करना है, वो आपके ताउन के साथ। कुछ जो आपने अभी बातों का जिक्र किया है, इस पर हम ज़रूर अभी बात करेंगे, मगर बुनियादी बात ये है जी कि हमने आगे अपनी फिस्कल परफॉर्मेंस भी मज़ीद बेहतर करनी है, हमने अपने प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ भी पूरे करने हैं, हमने इंशाल्लाह महंगाई को भी एक रीज़नेबल सतह पर रखना है, मगर बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट लेड
सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है आप सबकी मदद से। और इसमें जी इंशाल्लाह आपके साथ जो एक सिलसिला है राब्ते का, कोलैबोरेशन का, आपसे गाइडेंस हासिल करने का, दीगर इश्यूज़ पर आपके साथ एक फ़ीडबैक लूप रखने का इंशाल्लाह जी बिल्कुल मुस्तकिल रहेगा और रेगुलर रहेगा। इसमें मैं एक बात ज़रूर बस सिर्फ एड्रेस करूँगा, ख़ास तौर पे क्योंकि आपने दीगर बातें की हैं जी सर, तो मैं इब्तदाइये की हद तक मैं एक बात ज़रा ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, फिर बकिया हम चीज़ों को मेरे साथ क्योंकि मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स FBR से आए हैं तो हम एक एक करके चीज़ों को देख सकते हैं कि रिस्पॉन्ड करेंगे। मगर एक बात जो पावर टू अरेस्ट के हवाले से की गई है, मैं एक तो बस बुनियादी क्लैरिफिकेशन उसमें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें महसूस हुआ है, आपने सेक्शन 37A का जिक्र किया है कि कुछ उसके हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं कि वो एक्चुअल क्लॉज है क्या। और सबसे पहले तो जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पावर FBR के पास पहले से एग्जिस्ट करती थी और उस वक्त तो कोई भी आपके जो ऑफिसर हैं असिस्टेंट कमिश्नर की सतह पर एक शख्स खुद ही इंक्वायरी के स्टेज पर एक नतीजे पर पहुंचकर वो गिरफ्तारी कर सकते थे। इस दफ़ा जो हम तरमीम लाए हैं उसमें सेफगार्ड्स बिल्ड किए हैं और उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पावर टू अरेस्ट है ये सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड की हद तक महदूद है, ये इनकम टैक्स केसेस से मुतल्लिक नहीं है, ये सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट में लगती है। तो एक तो ये भी मैंने क्योंकि सुना है मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि लोगों का ख्याल था कि शायद इनकम टैक्स केसेस में भी ये जी तो सेल्स टैक्स एक्ट की हद तक महदूद है। दूसरी बात, सेल्स टैक्स एक्ट में भी सेल्स टैक्स फ्रॉड की चंद मखसूस अशखास जिनको डिफ़ाइन किया गया है और सेल्स टैक्स फ्रॉड के में भी पहले अब जो सेफगार्ड डाला गया है, पहले मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपनी इंक्वायरी स्टेज पर ही खुद ही विल बी अवेलेबल कि हम इंशाल्लाह आपके लिए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले में, जब भी आपका कोई इशू होगा उसको हम एड्रेस करेंगे। और इस शिक के हवाले से भी जी मैं आपके सामने एक तजवीज़ रखना चाहूँगा कि देखिए ये हमने असल टैक्स चोरों को तो पकड़ना है, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करता, मगर जहाँ पर और हमने जो सेफ गार्ड्स इसके अब्यूज़ को अवॉइड करने के लिए इस पावर के, वो भी मैंने आपके सामने पेश किए। मगर इसके बावजूद अगर आपके नज़र में कोई भी ऐसा केस आता है जहाँ पे आपको लगता है कि पावर अब्यूज़ हुई है, तो हम इंशाल्लाह, मैं आपको एक गारंटी करता हूँ कि हम पर्सनली हर एक केस को आपके साथ देखेंगे और उसकी तह तक पहुँचेंगे ताकि इसका अब्यूज़ मुमकिन ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ आप हमारे पास लेकर आएंगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के उसको फौरी तौर पर एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ हमारी एक तजवीज़ है कि हम महीने में वैसे भी एक आपके साथ मैकेनिज़्म सेट कर लें जिसमें महीने में एक दफ़ा FBR के साथ आपकी एक सिटिंग हो, उसमें मैं भी हाज़िर हूँगा। हम महीने में एक दफ़ा आपसे मिलें जिस पे इस हवाले से भी कोई अगर केसेस और खदशात हैं वो भी आपसे डिस्कस हों, और भी जो आपसे हमने गाइडेंस लेनी है या आपके इश्यूज़ कोई ऐसे हैं जो आप रेज़ करना चाहते हैं या कोई आगाही हम आपके सामने करना चाहते हैं FBR के हवाले से, वो हम बैठ के कर सकें। तो वो वैसे एक फॉर्मल मैकेनिज़्म भी हम बना देंगे कि हर महीने एक हमारी सेट मीटिंग हो, और इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह इस पार्टनरशिप में आगे जो आपसे हमने गाइडेंस लेनी होगी, जब आपको हमारी ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।